one you're looking for. Whether you're just starting or looking to make a mark, this session has got you covered with tips, tricks, and strategies that work. And who better to guide us than Aditya Singh? Aditya comes with a powerhouse background, having worked with Niti Aayog and Reliance, and is a pro at personal branding and content strategy. He's a LinkedIn ghostwriter, content strategist, and founder who has helped countless professionals create standout profiles and resumes. Aditya knows how to turn your potential into opportunities, and he's here to show you how. We're so thrilled to have Aditya with us today. Please give him a big warm welcome as he takes us through this exciting journey to boost our careers. Hey, thank you so much, Aditi. Hey, everyone, how are you guys doing? Yeah, we are. Okay, let's break dice. So, first of all, please tell me कि कौन-कौन यहाँ पे अभी LinkedIn use करता है. Just drop me a thumbs up or anything in the chat box. Okay, crazy. Cool, 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 cool. Crazy, crazy. कोई आप तुम में से कोई यहाँ पे मेरे से connected है on LinkedIn or somewhere else? Cool. Okay. So before we start, let me know key, why you want to, optimize your profile on LinkedIn. Just let me know in the chat box. Come on, guys, just let me know in the chat box. Okay, चलो मैं ऑप्शन दे देता हूँ फॉर इंटर्नशिप और फॉर जॉब और समथिंग. जस्ट लेट मी नो. अब बताओ. Okay, to get highlighted in the eyes of recruiter to get a job. Okay, Sonam. Okay, Ria. Anyone else? To grab attention. Okay, not us three. Nice. You already have the attention. Okay, start करें. Just give me a yes or no. Okay, just thumbs up or something. Okay, let's do it. Okay, let's go. Yep. Can you see my screen now? Just let me know. Yes, yes. Okay, sure. Here we go. So yeah, I think now it's clear. So let's decode LinkedIn. Hey everyone, this is me Aditya Singh, and first of all मैं intro देता हूँ अपना कि मैं हूँ कौन, because पहली बात तो मेरी कि मैं हूँ कौन, right? I'm Aditya Singh. I'm a CC and a business owner and a LinkedIn ghostwriter. I build profiles for founders and CXOs to build a personal brand on LinkedIn. And I worked with Niti Aayog, EY, Reliance, and I also got offers from Bain, Boston, and Gartner as well. And I'm currently in the top 20 notable personalities of India, along with Rosh Shimani and a lot of other founders as well. I got, I got featured on New York Times 5 times in a row at the yeah, in the age of 21. So yeah, this is my brief kind of a small intro. Let's start this. Okay, so there are basically three keys of LinkedIn. Like this is my personal account, this is my account on LinkedIn. If you want to follow me there or if you want to connect with me, you can connect here, right? So पहली चीज ये होती है कि द फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन. ये हमने बचपन से सुना है, एंड लिंक्डइन पे ये चीज मैटर भी करती है. Whenever like you are building up your LinkedIn or something, you need to understand that you need to have a proper
Am I audible now? Yes. मैं आई थिंक मेरा आवाज थोड़ा बीटी हो गई थी बीच में. लेट्स डू इट अगेन. बैनर वाला पॉइंट सबको समझ में आया अभी या नहीं? We were on the three keys of LinkedIn. Okay, yeah, sure. Let's go. So there are three keys of LinkedIn. हमने बचपन से सुना है, first impression is the last impression, right? And we need to make sure that कि जब भी whenever a recruiter is opening our profile or seeing our LinkedIn, so उसके मन में कोई एक proper अच्छी image बननी चाहिए. So for that we need to have a proper banner like this, right? A banner is the main thing. Banner define your आप banner में अपने बताता है banner आपको कि अपने अपने पास में क्या क्या कह रहा है. For example, in my case, if you zoom in here a little bit, yeah, right. So these are my credibility that trusted by over 30,000 people, and this is my mail ID. This is my simple quote, and this is the thing that I do: podcast host, personal branding, and career guide, right? And these are the couple of organization जिसके साथ मैंने काम किया है, right? So now a good banner is the first step. Like जब भी आपको एक LinkedIn की प्रोफाइल अच्छे से बनानी होती है, so you need to make sure कि you have a proper and solid banner, right? Now the second thing is a good profile picture. प्रोफाइल पिक्चर से मेरा यहाँ पे मतलब इंस्टाग्राम वाली नहीं, आई रिपीट. प्रोफाइल पिक्चर जिसमें आपका फेस अच्छी तरीके से दिख रहा हो, जस्ट लाइक दिस. एंड थोड़ा और जूम इन करोगे तो और अच्छा रहेगा. सो अब गुड प्रोफाइल पिक्चर clearly indicates that कि it's a kind of a sense of belonging देता है वो रिक्रूटर को कि whether you are a like how seriously you take LinkedIn, right? Now the third and the most important thing is the highlight. How many of you know that वो headlines किसे कहते हैं LinkedIn पे? Just let me know. Anyone? किसी को कोई clue है headlines किसे कहते हैं? Just let me know in the chat. Okay, Nia, bio, yeah, good. Anyone else? The description box. Sorry. The description box. Yeah, description box is something is more of a about section actually. The headlines is basically the main key जिसकी वजह से आप LinkedIn पे highlight होते हो. जब whenever you open your profile, you see that you appeared in 800 search results, 900 search results and everything, right? तो वो चीज़ जो होती है ना, वो particular चीज़ जो होती है वो आपका headlines के through work करती है, right? So now the main thing is that this is this thing right here is my headline, like helping founders CXOs shine on LinkedIn ghostwriter, 12 million plus views, personal branding, founder, e-viral lines and everything, right? Now the main thing is that how we can write a solid headline. uh, you know let's uh, let's keep this thing a little interesting here. Like any one of you जिसको अपनी LinkedIn प्रोफाइल अगर रिव्यू करानी हो, हम उसको लाइव स्क्रीन अभी शेयर करते हैं एंड मैं उसकी प्रोफाइल रिव्यू करता हूँ और आप सबको बताता हूँ कि हाउ टू राइट अ गुड हेडलाइन. एनीवन? कौन वॉलंटियर करने जाएगा? नेहा, प्रियांशी, ओके ओके, एंड दिव्यांशी, ओके ओके. लेट्स स्टार्ट विद नेहा एंड देन वी कैन मूव फर्दर. दूसरे लोग भी कर देंगे. नेहा, जस्ट शेयर योर स्क्रीन एंड अलॉन्ग विद योर लिंक्डइन प्रोफाइल. Hello Neha, can you hear me? Hello, can you see the screen? Yeah, we can. Okay, so yeah, got it. Neha, just bio with the company. Okay, so Neha is a social media head. Just the headline, nothing else, right? So yeah, this is a basic bio, right? Neha, can you just show me a search result? Neha की जो search appearance है वो 48 है, right? So the main thing here यहाँ पे जो 48 ये just you don't need to open it, just back हो जाओ, no worries. अपनी खाली प्रोफाइल दिखा दे बस, या बस खाली ऊपर प्रोफाइल, बस ऊपर हेडलाइंस दिखा दे बस. यार स्टे लाइक दैट.
ओके, सो नाउ द मेन थिंग इज दैट यहाँ पे नेहा की जो सर्च अपीयरेंस है वो 48 है, राइट? 48 है। 48 वो क्यों है? क्योंकि नेहा की जो प्रोफाइल है उसमें सारे जो कीवर्ड्स हैं थोड़े वो मिसिंग है। इसका जो पर्सनल ब्रांडिंग का भी जो कीवर्ड है, फॉर एग्जांपल पर्सनल ब्रांडिंग, लिंक्डइन ग्रोथ एक्सपर्ट, दिस इज दीज आर टू कीवर्ड्स, बट इसने उसको सेग्रीगेट कर रखा है एंड लगा के। वो चीज इसकी सर्च अपीयरेंस को रोक रही है। You need to make sure that you are just writing this thing, personal branding slash LinkedIn growth expert. It will create more sense. Otherwise, whenever you are searching for personal branding, so you will never see Neha Sharma over there, because you need to just dig down deeper and deeper, and so that after that you will find Neha Sharma, right? So this is the main thing. Whenever you are writing a headline, you need to make sure that कि आपकी headlines में वो keywords हो. For example, अगर आप किसी को finance में जाना है तो आप finance का वो keyword use कर सकते हो, finance, right? किसी को marketing में जाना है, marketing लिख सकते हो, right? किसी को data analyst में जाना है, वो data analyst लिख सकता है. प्लस आपने किस किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करा है. फॉर एग्जाम्पल मैंने EY के साथ काम करा है, नीति आयोग के करा है, रिलायंस के करा है. तो जब भी लोग EY, नीति, रिलायंस को सर्च करते हैं तो उसमें मेरा भी अपीयरेंस आता है. तो दैट्स द मेन थिंग, राइट? ये बात सबको क्लियर है? नया प्रोफाइल बंद कर सकते हो तो ये बात सबको क्लियर है? जस्ट गिव मी यस और नो. गाइस प्लीज माइक ऑन करके बोल दो. इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट थिंग फॉर मी एज वेल. यू नो व्हेन आई वाज इन माय 12th ग्रेड, हमारी ऑनलाइन क्लासेस होती थी. देन टीचर्स हमसे बोलती थी कि माइक ऑन कर लो बेटा. सो आज मेरे को फील हो रहा है कि वो टीचर्स को कैसा लगता था. एनीवेज, या सो और किसको प्रोफाइल रिव्यू करानी है, जस्ट लेट मी नो. उसकी भी करते हैं फटाफट एकदम. Anyone, just raise your hand. किसी को और को नहीं करानी? ओके कूल, लेट्स मूव फर्दर. नाउ मेन ये जो 3 कीज थी आपको पता चल गई. हम लिंक्डइन के फटाफट यूज केस के बारे में बात करते हैं. लिंक्डइन के बेसिकली 3 यूज केसेस होते हैं. फर्स्ट फॉर जॉब, इंटर्नशिप एंड बिजनेस, राइट? अब मेरे को एक बात बताओ कि कितने लोगों को यहाँ पे जॉब करनी है अभी, कितने लोगों को इंटर्नशिप करनी है और कितने लोगों को कंटेंट क्रिएट करना है, बिजनेस बनाना है? जस्ट लेट मी नो इन द चैट्स. Okay, apart from Neha, anyone else? Business, job, digital marketing, internship. Okay, cool. Internship, okay, cool. Chalo, that's crazy. Internship, okay. Okay, let's first start with internship, right? So this is me sitting here, in the EY office, Noida, right? So I got this internship through LinkedIn. Let me tell you how. For internship, you need to write a cold email to the HRs of big firms, right? अब now that there is a trick कि हमें cold email कैसा लिखना है और कैसा नहीं लिखना. किस किस को मेरा cold email देखना है? Just give me a yes or no in the chat, and I will show you the exact cold email जो मैंने EY के recruiter को भेजा था. Just give me a yes or no in the chat. Okay, let me show it to you. Okay, chat, are you ready? Cool, let's go. Let me show you my cold email template जो मैंने EY को भेजा था. Okay, मेरी स्क्रीन दिख रही है सबको? Just give me yes or no फटाफट. Okay, cool. So this is the cold email template जो मैंने EY को भेजा था, right? Now the cold email template, this was my first ever cold email template जो मैंने किसी बड़ी फर्म को भेजा. So you can see a clear and a crisp description about me, right? After that my experience, right? And experience में make sure करना you do have this quantification. This is the main thing, right? अभी स्क्रीनशॉट वगैरह मतलब मैं इस कॉल के एंड में आपको सबको बहुत सारी चीजें देने वाला हूँ, ठीक है?
and this is a skill set that I hold, right? And now like मेरी पर्टिकुलर फील्ड में किस फील्ड में इंटरेस्टेड हूँ, राइट? मैं आपको अभी एक क्विक ओवर भी दे रहा हूँ, और नाउ ये मेरा एक क्लोजिंग था। नाउ तो इस कोल्ड ईमेल टेम्पलेट मैंने क्या किया था, सिंपल एक ग्रीटिंग, क्योंकि मैं 2 लोगों को भेज रहा था। अ क्विक इंट्रो अबाउट माई सेल्फ, मेरा एक्सपीरियंस, मेरी एबिलिटीज़, मेरी स्किल्स, मैं उन स्किल्स से क्या क्या रिजल्ट डिलीवर कर सकता हूँ, एंड मेरी एक क्लोजिंग जिसमें मैंने बोला है कि मैंने अपना रिज्यूमे अटैच कर दिया है, एक ग्रैटिट्यूड का मैसेज, एंड वो। अब उसके बाद मेरे को आया था ईवाई से रिवर्ट ऐसा: Hey Aditya, we glad to note your interest in interning with EY. Attach the mail are the GDs for 3 teams. We have a position open, right? तो इन्होंने 3 GDs भेजे थे, तो ऐसे करके फिर हमारी बात हुई, राइट? उसके बाद इट गोज ऑन एंड ऑन, यू नो, यू कैन सी दैट कितना कितना ज़्यादा करना पड़ा था मेरे को फॉर वन इंटरव्यू। सो जिसको भी लग रहा है कि बिग फॉर्म इज अ काइंड ऑफ यू नो इजी थिंग, यू कि आप एक दिन में कर लोगे, यू नीड टू हैव सम पेशेंस, एंड यू नो लाइक दिस इज माय फाइनल इंटरव्यू विद द डायरेक्टर, राइट? टाइमिंग 12:30 PM, right? So this is my cold email template for EY. अब now the main thing is that कि अब यार कोल्ड ईमेल तो हम लिख भी लेंगे, पर कोल्ड ईमेल भेजना किसे, राइट? ये सवाल आता ही नहीं आता कि सबके मन में आता है, गिव मी यस और नो फटाफट, कि कोल्ड ईमेल भेजे किसे? हमारे पास कोल्ड ईमेल टेम्पलेट तो हम खुद भी लिख सकते हैं, पर भेजे किसे, राइट? हाउ मेनी ऑफ यू लाइक राइट नाउ, जिसको अगर मैं बोलूँ कि मैं आपको वो डेटाबेस अगर किसी को चाहिए जो पर्टिकुलरली मैंने यूज़ किया था फॉर बेन, ईवाई एंड रिलायंस, किस किस को चाहिए वो डेटाबेस? जिस पर माइक खोल के यस या नो बोलो, एक बार चैट में मत बोलो, गिव मी यस और नो। Yes. Yes. बोलो यार, Yes. बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। Yeah. ओके, चलो, कहीं जब फायदे की बात हुई तब तो तुम लोगों ने माइक खोला, ग्रेट। चलो, तो आफ्टर दिस थिंग, आफ्टर दिस कॉल, आई एम गोना गिव यू समथिंग जो तुम लोगों का यू नो जस्ट फ्लिप करके रख देगी सब चीजें, जो जो तुम्हारी ड्रीम फर्म है ना। चलो एक बार फटाफट अपनी ड्रीम फर्म बताओ मेरे को इन द चैट बॉक्स, बेन, ईवाई, केपीएमजी, डेलॉयट, मैकिन्जी, बॉस्टन, एनीवन, एनीथिंग, जस्ट लेट मी नो इन द चैट्स। नेटफ्लिक्स, चलो एनीवेज आगे, यू नो इट्स आउट ऑफ द ब्लू आंसर टू बी ऑनेस्ट, बट या कोई नहीं, हो जाएगा नेटफ्लिक्स भी। संस्कृति, डेलॉयट, डेलॉयट, आगे आगे आगे। 3-4 लोगों की गूगल, ओके दिव्यांशी, आगे और किसी की ड्रीम फर्म नहीं है क्या? गूगल, ओके, आगे। इन्फोसिस, ओके, 90 आवर्स पर वीक, केपीएमजी और नाइका, ओके। आकांक्षा ने बहुत तगड़ी फॉर्म लिखी है, नहीं आई है कोई मार्केट में, आगे। एनीवन, ओके, ठीक है, चलो रिया को, रिया डू हैव सम नॉलेज, ओके, दैट्स ग्रेट, ओके, ग्रेट, कूल 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 कूल। सो नाउ द फर्स्ट थिंग इज दैट इंटर्नशिप को हमारा सॉर्ट हो चुका है, राइट? कि हमें इंटर्नशिप कैसे करनी है। इंटर्नशिप के लिए आपको कुछ नहीं करना, कोल्ड ईमेल लिखना होता है एचआरस को। मैं बताऊं, मैं इतना एक्सप्लेन भी नहीं कर रहा कि आपको कोल्ड ईमेल कैसे लिखना है, क्या लिखना है। मैं अपना कोल्ड ईमेल टेम्पलेट, जिसकी वजह से 200 प्लस, इट्स अराउंड 215 पीपल राइट नाउ, जो करंटली ईवाई, बेन, केपीएमजी, डेलॉयट, नीति आयोग, बॉस्टन, हिंदुस्तान यूनिलीवर और ऐसी कई सारी फॉर्म्स हैं, उनमें इंटर्नशिप कर चुके हैं और कर रहे हैं सेम एग्जैक्ट कोल्ड ईमेल टेम्पलेट जो मैंने दिया था अलॉन्ग विद द डेटाबेस, राइट? तो वो मैं इस चैट के बाद दे दूंगा, लेकिन उसमें एक ट्रिक है, वो मैं बता दूंगा इस सेशन के बाद में। सो साउंड्स ग्रेट, राइट? कोई मेहनत करने की ज़्यादा जरूरत नहीं लग रही, राइट? मेरा कोल्ड ईमेल टेम्पलेट है, तो मैं अपने अकॉर्डिंग एडिट करना है, एंड मेरे डेटाबेस में बस अपने एचआरस को पुट करना है, स्टार्ट सेंडिंग कोल्ड ईमेल्स, राइट? कूल। बट नाउ द मेन थिंग, अगर मेरा कोल्ड ईमेल टेम्पलेट तुम्हें मिल भी जाता है, you need to have a solid resume, otherwise there is no use to be honest। if you don't have a solid resume, आप कोल्ड ईमेल करोगे, आपका एचआर रिज्यूमे स्क्रीन कर, मतलब यू नो एनालाइज करेगा, वो वहाँ पे नो बोल सकता है आपको। मेरा कोल्ड ईमेल, you will get a reply from the company, that's my assurity, but you need to stay consistent with that particular cold email, बट यू नीड टू हैव अ सॉलिड रिज्यूमे। किस किसको लगता है उसका रिज्यूमे एकदम सॉलिड है? मैं रिव्यू करने के लिए नहीं बोलूंगा, बस मेरे को बताओ किस किसको लगता है उसका रिज्यूमे सॉलिड है।
रोने क्यों लग गए लोग? किसी को नहीं लगता क्या? बहुत बुरा हाल है। ओके, किस किस को मेरा रिज्यूमे का ई बुक चाहिए अलॉन्ग विद माई रिज्यूमे टेम्पलेट? जस्ट गिव मी अ येस और नो। मुंह से बोल दो गए प्लीज। Yes, ओके yes, sir. ओके, कूल 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 कूल, दैट्स ग्रेट। ओके, आई जस्ट सॉ अगेन, मेरे कॉलेज के भी कुछ लोग आए हुए हैं यहाँ पे। ग्रेट। ओके, नाउ द मेन थिंग इज दैट, लव, लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ। अब मेन आता है कि लिंक्डइन पे जॉब कैसे मिलती है। लाइक आई गॉट ऑफर्स फ्रॉम गार्टनर एंड या जस्ट गिव मी अ सेकंड। Yeah, so basically I got offers from Gartner and EY and Bain through LinkedIn. अब now the main thing is that कि हमें LinkedIn से जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती कैसी है, राइट? देयर आर 5 ways जो मैं अभी आपको कॉल के अभी इस नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। उससे पहले बात करते हैं कंटेंट क्रिएशन की और बिजनेस की। यहाँ पे आई थिंक देयर आर कपल ऑफ पीपल जिनको बिजनेस करना है, राइट? किस किस को बिजनेस करना है यहाँ पे LinkedIn से? लेट मी नो। ओके नेहा आई थिंक यू नो यू आर द ओनली इंडिविजुअल आउट देयर ये जिसको अभी बिजनेस करना है। ओके, देयर आर 2 people, राइट? Okay, and you can reach out to me on my LinkedIn. I will give you my personal, you can say, guide for that particular same thing, you know, for the same thing, right? Let's talk about something, you know, job opportunity जो अभी यहाँ पे major लोगों का वो है, concern है, right? Okay. उससे पहले LinkedIn पे अच्छी engagement कैसे लाते हैं? This is my post जिसमें 1.7 million views गए थे। ये मैंने लिखा था आज से करीबन 2 साल पहले। या तो अब वायरल व्यू किस किस को, यू नो, किस किस को यहाँ पे कौन कौन है जो अभी यहाँ पे LinkedIn पे पोस्ट लिखता है अभी अपनी? कौन कौन है? कोई नहीं है, बिंदास बोलो है। अगर लिखते हो तो भी, नहीं लिखते हो तो भी बिंदास बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रेट, कूल कूल कूल। जो जो नहीं लिखते, मैं कहता हूँ लिंक्डइन में पोस्ट लिखने चालू करो। इट इज द ओनली की जो आपको इनबाउंड लीड दिलवाती है रिक्रूटर्स की, बिजनेस के लिए और एनी, यू नो, फॉर एवरीथिंग, राइट? पोस्ट लिखने चालू करो नाउ। दिस इज माय पर्सनल पोस्ट जो मैंने लिखा था। दिस इज वन ऑफ माय, यू नो, टॉप परफॉर्मिंग पोस्ट ऑन लिंक्डइन विद ओवर 1.7 million व्यूज एज यू कैन सी है। और जिसको लग रहा है मेरा पोस्ट नहीं है, अगर मेरा पोस्ट नहीं होता तो मैं यहाँ पे मेरा प्रोफाइल का साइन नहीं आता। अदरवाइज मेरी प्रोफाइल पे जाके देख लेना, वहाँ पड़ा हुआ है ये। सो अ गुड पोस्ट रिक्वायर्ड अ गुड हुक। अ गुड हुक, अब एक गुड हुक क्या होता है नाउ? अगर मैं आपसे बोलूं कि यू नो कोई सा भी एक रैंडम एग्जांपल लेते हैं, राइट? कि लेकिन अगर आपसे कोई बोलता है कि कॉन्वर्सेशन पे आपके कि यार तुझे पता है आज क्या हुआ, कि आज मैं कॉलेज गई थी, देन टीचर आए और टीचर आने के बाद उसने पढ़ाया, राइट? साउंड प्रीटी बोरिंग, राइट? यस और नो, राइट? काफी नॉर्मल कॉन्वर्सेशन लग रही है, ज्यादा ध्यान से आप सुनोगे भी नहीं। फिर अगर मैं ये बोलूं, तुझे पता है आज क्या होता स्कूल? हाँ, तुझे पता है आज क्या होता? से बंद हो गई कितनी, मतलब वो लग रहा है साउंड थोड़ा स्पाइस अप हुई नहीं चीजें, राइट? यस और नो, जस्ट गिव मी यस और नो, राइट? सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड हुक। हुक इज द थिंग जो आपको बेसिकली बताती है कि हाउ टू ग्रैब योर अटेंशन, लाइक हाउ टू ग्रैब ऑडियंस अटेंशन, राइट? यू नीड टू राइट अ हुक जिसके अंदर वो हुक ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, वो एक लाइन का हुक हो, एंड उस हुक में एक अच्छी सी एक कैचिंग लाइन होनी चाहिए, ठीक है? कैचिंग का मतलब यहाँ पे हुक की लाइन है, राइट? अगेन नाउ द मेन थिंग इज दैट कि हाउ टू राइट अ गुड हुक। अब जब भी आपका जो भी आप पोस्ट लिख रहे हो ना, उसके लिए आपको एक कोई ऐसी की हाईलाइट वहाँ पे फीचर करनी है जो उस चीज को दूसरों से अलग बनाए, और प्लस साथ ही साथ उस पर्टिकुलर चीज को कोई भी अगर पढ़े तो उसको लगे यार दिस इज समथिंग दैट आई रियली वांट टू, राइट? फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ, उसमें आप हुक भी यहाँ पे आप 3 टाइप की यूज कर सकते हो। एक, आप किसी बड़ी फर्म के नेम यूज कर रहे हो, लाइक EY, बेन, या किसी बड़े कॉलेज का नाम यूज कर रहे हो इधर, या फिर आप कोई साइकोलॉजिकल हुक यूज कर रहे हो कि फॉर एग्जाम्पल यू नो you will never meet a same person in the same person twice, right? This is a kind of a psychological hook जो बहुत deep लोगों को thinking करने पे समझ में आता है। Oh, this is something, you know, he's talking about, let's click on it, right? Now the third thing is that third is a very simple hook जिसमें आप अपना hook के साथ अपना content showcase कर रहे हो, like 50% of the hook and the 50% of the content। जिसको अभी ये चीज़ नहीं समझ में आई वो मेरे, मैं आपको उसका एग्जांपल देता हूँ। किस किस को मेरा एक लेटेस्ट पोस्ट देखना है जिसमें मैंने एक अच्छा हुक यूज़ किया था, उसका एग्जांपल देखना है? जस्ट गिव मी यस और नो।
Okay, let me show it to you. Okay, मेरी स्क्रीन दिख रही है सबको? Yes, Just give me a sir. thumbs up. Okay, okay, let. So this is what I'm talking about. ये मैंने कभी रिसेंटली 2 दिन पहले एक पोस्ट लिखा था टू ऑल द हायरिंग मैनेजर्स, राइट? उसके नीचे देखो, दिस इज a 50-50, राइट? दिस इज द हुक एंड दिस इज द सेकंड थिंग, राइट? ओके, सो इसमें दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट कि एक 50% हुक क्या होता है। 50% हुक वो होता है इसमें आप आधा अपना हुक शोकेस कर रहे हो और आधा अपना कंटेंट शोकेस कर रहे हो। एंड दिस पोस्ट परफॉर्म प्रीटी वेल। वी ऑलमोस्ट वी आर अबाउट टू हिट 100K ऑन दिस पर्टिकुलर पोस्ट, राइट? मैंने इसे बहुत सिंपल सी चीज़ें लिखी थी कि एक एंट्री जॉब का मतलब, एक एंट्री लेवल का मतलब एक एंट्री लेवल होता है। उसका मतलब ये नहीं होता कि आपको MBA करनी है, आपको 2-3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, इंडस्ट्री की क्वालिफिकेशन चाहिए। बट या एक अच्छा एंट्री लेवल का मतलब एक ऑन द जॉब ट्रेनिंग होती है, एक मैनेजर होता है, एक सैलरी होती है। कोई भी परफेक्ट कैंडिडेट्स कभी भी एग्जिस्ट नहीं करते। करियर गैप रिजेक्टेड, नॉट इनफ एक्सपीरियंस रिजेक्टेड, सैलरी एक्सपीरियंस एक्सपेक्टेशंस टू हाई रिजेक्टेड, ओवर क्वालिफाइड रिजेक्टेड। ये सारे वैलिड रीजन हैं रिजेक्ट करने के, लेकिन ये सारे के सारे वैलिड रीजन जो आते हैं ये सीवी से आते हैं। किसी को भी कॉन्वर्सेशन नहीं करनी। एक सेकंड के लिए सीवी अपना असाइड कर दो एंड जस्ट कीप द सीवी असाइड फॉर अ सेकंड, मेक अ कॉल, गेट टू नो अबाउट द कैंडिडेट, देन डिसाइड। और हमेशा एक अच्छा सीवी, एक अच्छा मतलब एक सीवी हमेशा एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को डिफाइन नहीं करता। और एक अच्छा सीवी हमेशा उसका मतलब ये नहीं होता कि दिस इज द राइट फिट फॉर द कैंडिडेट। एंड लोगों ने ये चीज़ पसंद करी, राइट? नाउ किस किस को अभी समझ में आ गई कि अच्छा हुक 50-50 हुक कैसे किसे कहते हैं? ऑल क्लियर? यस और नो? यस और नो? जस्ट Yes, माइक्रोफोन। sir. ओके ओके, क्रेजी क्रेजी क्रेजी, राइट? अभी तक कैसा लग रहा है सेशन? मजा आ रही है? कुछ मजा आ समझ में रहा आ रहा है? कुछ मजा आ रहा है ना? ओके, लेट्स मूव फर्दर। नाउ मेन थिंग अबाउट इज द वैल्यू। अगर आप एक अच्छा हुक लिख लोगे ना, और अगर आपकी वैल्यू नहीं हुई, अगर आपकी कंटेंट में वैल्यू नहीं है, तो कोई नहीं पढ़ेगा, टू बी ऑनेस्ट। जस्ट लाइक हमारी अगर इंडियन टीम की बैटिंग की बात करें, अगर हमारी अच्छी ओपनिंग नहीं मिलती तो हम अच्छा स्कोर खड़ा नहीं कर पाते, राइट? किसी भी टीम में होता है, राइट? अब नाउ व्हाट, लाइक हाउ टू ऐड वैल्यू। हमेशा एक ध्यान रखना, वैल्यू का एक बहुत सिंपल सा मंत्र है। उस मंत्र को हम ये उस मंत्र को हम ये कहते हैं कि हमेशा हाउ के ऊपर बात करो, नॉट कि अपनी स्टोरी टेलिंग में हाउ के ऊपर बात करो कि आप कैसे वो चीज कर सकते हो। हाउ इज इक्वल टू वैल्यू, राइट? इफ फॉर एग्जाम्पल इफ नाउ आई एम सिटिंग हियर, आप लोग मेरे को सुन रहे हो, वो लोग आप इसलिए सुन रहे हो क्योंकि मैं हाउ के ऊपर बात कर रहा हूँ। हाउ टू बिल्ड योर प्रोफाइल, हाउ टू गेट इनटू बिग फर्म, राइट? हाउ टू क्रैक बिग फर्म, राइट? हाउ टू बिल्ड अ रिज्यूमे, हाउ टू बिल्ड अ प्रोफाइल, राइट? समझ में आ रहा है? लेकिन मैं हाउ के ऊपर बात कर रहा हूँ, दैट्स व्हाई यू आर लिसनिंग टू मी, राइट? यस और नो? जस्ट गिव मी यस और नो, क्विक। Yes, sir. राइट? क्लियर? थोड़ा क्लियर हो रहा है कि वैल्यू में हाउ का मतलब कितना इंपॉर्टेंट होता है। So if you know how to add value in your post, then you know how to write a good post, right? आपका एक अच्छा हुक हो गया, एक अच्छी वैल्यू हो गई। नाउ दिस इज द 75% ऑफ द काम यहाँ पे अभी खत्म हो चुका है, राइट? नाउ द लास्ट थिंग, अ गुड CTA। किस किस को CTA की फुल फॉर्म पता है? कैन यू रिपीट प्लीज? कौन सा वाला पॉइंट करना है रिपीट? जस्ट लेट मी नो। और प्लीज माइक खोल के बोल ले यार। या गौरव, इट्स कॉल टू एक्शन। या अविरल भारद्वाज, नाम सुनो सुनो लग रहा है मुझे। ओके, एनीवेज, ठीक है। नाउ अ गुड CTA मींस कॉल टू एक्शन, राइट? अब कॉल टू एक्शन हम कैसे कैसे कर सकते हैं? देखो, कॉल टू एक्शन कई सारे टाइप के होते हैं, राइट? इट्स डिपेंड ऑन योर कंटेंट। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई, जैसे कि मैंने अभी मैनेजर वाला पोस्ट लिखा था ना, उसमें मैंने मेरा कॉल टू एक्शन बहुत सिंपल सा हो सकता है, एग्री क्वेश्चन मार्क। क्योंकि मेरे को बस लोगों से कुछ पूछना है कि आप एग्री करते हो या नहीं करते। और अगर आप लिंक्डइन पर्सनल ब्रांडिंग कर रहे हो, तो उसके लिए मेरा एक CT हो सकता है कि लाइक, हे आई एम आदित्य सिंह, राइट? I help founders build their personal profile on LinkedIn. If you're a founder, just DM me, right? This is my CTA, right? अब अगर आप एक अच्छा अपना जॉब के बारे में लिख रहे हो, अगर आप अपनी क्रेडेंशियल के बारे में लिख रहे हो, तो आपका CTA हो सकता है कि आई एम ओपन टू वर्क, राइट?
और अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर, आपका सीटीए हो सकता है कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस पोस्ट, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट्स, राइट? तो दीज आर द कपल ऑफ सीटीज जो आपको हमेशा यूज करने होते हैं। तो बेसिकली सीटीए क्या होता है? सीटीए को अगर मैं सिंपल वर्ड में डिफाइन करूं, सीटीए मीन्स जो भी आपने चीज अपने कंटेंट में लिखी है, उस चीज में लोगों को वैल्यू ऐड करने के लिए बुलाना, उस चीज को हम सीटीए कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात कर रहा हूँ, मैंने हायरिंग मैनेजर का पोस्ट लिखा, मुझे लोगों से वैल्यू ऐड करवानी है, तो मैं उसमें लिखता हूँ एग्री क्वेश्चन मार्क, तो वो मेरा सीटीए। अगर मैं अपना कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ रिगार्डिंग द टॉप 10 लर्निंग्स फ्रॉम ईवाई, राइट, तो मैं लोगों से पूछूंगा कि मैंने क्या मिस करा, लाइक कौन सी जो हो सकती है, कौन सी 11th लर्निंग हो सकती है इस पर्टिकुलर चीज के लिए, जस्ट लेट मी नो, राइट? तो दीज आर द सीटीए, राइट? किस किस को आप सीटीए समझ में आ गया यहाँ पे? ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क, लिंक्डइन फॉर जॉब, राइट? ये तो सबको अभी नीड में होगी, राइट? सबको ये वाला मेन तो देखने हैं, लिंक्डइन फॉर जॉब, राइट? अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। यप, दिस पर्टिकुलर थिंग, लिंक्डइन फॉर जॉब, राइट? ये तो एक काफी हॉट क्वेश्चन है, राइट? लाइक जिसके लिए थम्स अप, राइट? अगर ये मेन टॉपिक है इसका। ओके, लेट्स कूल। तो देयर आर 5 वेज टू गेट अ जॉब थ्रू लिंक्डइन। सबसे पहला, जॉब पोर्टल। जो लिंक्डइन पे जब आप क्लिक करते हो तो उसके साइड में एक जॉब का आइकन आता है ना, इजी अप्लाई करके एक ऑप्शन होता है लिंक्डइन में, लेकिन उसमें आपका कंपटीशन बहुत ज्यादा होगा, बहुत बहुत ज्यादा होगा। अब नाउ द मेन थिंग इज दैट कि देखो, जॉब पोर्टल के बारे में सबको पता है लिंक्डइन के, जस्ट गिव मी यस और नो। ओके, सोनम, रिया, ओके, लक्ष्मी, आई थिंक ऑलमोस्ट सबको ही पता है जॉब पोर्टल के बारे में, राइट? लेकिन जॉब पोर्टल में आपको एक मैं चीज बता दूं, जॉब पोर्टल जितना, देखो, आपने एक कोट है, वो कोट इस तरीके से कि रोड टू हेल फील लाइक हेवन एंड रोड टू हेवन फील लाइक हेल। तो जस्ट द सेम केस यहाँ पे भी अप्लाई होता है। जितना इजी आपका अप्लाई का फीचर होगा ना, उतने ज्यादा कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, उतना कंपटीशन बढ़ेगा। नाउ जॉब पोर्टल में बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं। नाउ द कंपनी पेजेस, आपको पता है कुछ दिनों पहले डेलॉइट ने अपने कंपनी पेज पे एचआर की इंटर्नशिप डाली थी, लेकिन वो इंटर्नशिप उसने जॉब पोर्टल पे पोस्ट नहीं करी थी। डेलॉइट को ये चीज कंपनीज को पता होती है कि जो आइडियल कैंडिडेट उनके साथ काम करना चाहता है, वो ऑलरेडी उन्हें फॉलो करता है, उसने ऑलरेडी जॉब नोटिफिकेशन ऑन करके रख रखी है, तो जब भी हम पोस्ट करेंगे तो उसको ऑलरेडी पता चल जाएगा। अब यहाँ पे उन्होंने उन लोगों को बिल्कुल सेग्रीगेट कर दिया जिनको खाली ऐसी हवा हवा में जाके अप्लाई करना है, अब अच्छा डेलॉइट है मैं अप्लाई कर देता हूँ या कर देती हूँ, राइट? तो दिस इज द मेन थिंग, कंपनी डू फॉलो दीज स्ट्रेटजीज इन ऑर्डर टू गेट एप्लीकेंट्स फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड। समझ में आई ये बात? ये इनसाइट कैसी लगी? समझ में आई सबको? गिव मी यस और नो। नाउ नाउ द मेन थिंग कि कंपनी, देखो, अब आपको जॉब पोर्टल में अगर अप्लाई करना है तो मेक श्योर यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिज्यूमे, अदरवाइज थोड़ा काम नहीं बनेगा। नाउ फॉलो ऑल द कंपनी, जितने भी आपकी टॉप फर्म्स है ना, उनको फॉलो करो। और देयर आर लॉट ऑफ फर्म्स आउट देयर जिनकी ब्रांड वैल्यू मार्केट में बहुत है, लेकिन हम लोगों को नहीं पता, राइट? बिकॉज वी आर नॉट अवेयर। हमारे कॉलेज में वो तरीके से हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उस तरीके से वर्क नहीं करता कि वो हमें सारी कंपनीज की स्टडी करके बताएं। आपको पता है हार्वर्ड में हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू, जो एक हार्वर्ड की मैगजीन है, उसके अंदर वीकली बेसिस पे कंपनीज के बारे में बात होती है। मैं मेरे कॉलेज में हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू आती थी, तो मेरे को ये चीज़ पता है, लेकिन जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ। देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज आउट देयर जिनकी मार्केट वैल्यू बहुत अच्छी है, लेकिन हम उसके बारे में अवेयर नहीं है, राइट? वो उसका भी मैं सॉल्यूशन हमारे इस कॉल के एंड में बताऊँ। नाउ द थर्ड थिंग इज एचआर, राइट? देयर आर लॉट ऑफ एचआर्स जो इस समय पोस्ट डालती हैं कि करेंटली वी आर हायरिंग, राइट, लुकिंग फॉर, राइट? सो नाउ द मेन थिंग इज दैट कि उन एचआर्स की पोस्ट को हम कैसे पढ़ें। तो एक चीज ध्यान रखना कि जितने भी, आपको कुछ नहीं करना, आपको बस लिंक्डइन पे जाना है। किस किस को यहाँ पे भी देखना है कि एचआर्स को फाइंड आउट कैसे करें ऑन लिंक्डइन किसी भी कंपनी के, जस्ट लेट मी नो। ओके, लेट्स कूल 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 कूल। ओके, लेट मी शो इट यू। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मैं किसी भी कंपनी का नाम डालता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल बेन एंड कंपनी, राइट? बेन एंड कंपनी, कहाँ गई बेन? बेन उड़ गई, या फॉर एग्जांपल बेन एंड कंपनी, राइट? नाउ यहाँ पे आपको 3 फिल्टर्स अप्लाई करने होते हैं। सबसे पहले फिल्टर है पीपल का, उस पर आपने पीपल को क्लिक करा।
नाउ यू नीड टू कम हियर, लोकेशन आप अप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं न्यू दिल्ली की चाहिए, लोग BNN कंपनी में काम करते हैं अभी जो इस समय न्यू दिल्ली में, राइट। नाउ द मेन थिंग, ऑल फिल्टर्स में गए, स्क्रॉल डाउन करा और यहाँ पे एक वर्ड आता है टाइटल, और यहाँ पे आपको सर्च करना है HR एंड देन क्लिक ऑन शो रिजल्ट, boom, you will see every HR, right? Recruiter, HR manager, senior, like TED Talk, ये तो चलो वो हो गया। और ना अभी ये करंट कंपनी में जाके पेन कंपनी सेलेक्ट कर लेना अगर ऐसे, क्योंकि ये सब लोग दिखाता है। तो अब यहाँ पे ये मेरे को 2 लोग शोकेस कर रहे हैं जो इस समय दिल्ली रीजन में वर्कआउट कर रहे हैं, राइट। ग्रेट, क्योंकि मैंने दिल्ली डाला है, गुड़गांव नहीं डाला, रिमेंबर मैंने दिल्ली डाला है, राइट। जब गुड़गांव डालोगे तो, और अगर मैं यहाँ पे दिल्ली की जगह मैं खाली इंडिया लिख देता हूँ, राइट, एंड मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, देयर आर लॉट ऑफ पीपल, राइट। नाउ यू विल सी अ लॉट ऑफ HRs, राइट। एंड वन मोर थिंग जो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर कोई भी HR किसी कंपनी का, अगर आप किसी मुंबई वाले HR को कोल्ड ईमेल लिख रहे हो, तो इसका वो वहाँ पे ये मतलब नहीं है कि आपको इंटर्नशिप मुंबई में मिलेगी। देयर इज अ जॉब पोर्टल। फॉर एग्जाम्पल जो ये मैंने जो इंटर्नशिप के लिए मैंने ये कोल्ड ईमेल लिखा था ना, विनीशा शुक्ला, आपको मैं दिखाता हूँ। मेरी EY की जो इंटर्नशिप कहाँ पे थी, नोएडा में थी, राइट। व्हेन आई जस्ट सर्च हियर, विनीशा शुक्ला, राइट, शी इज HR, ये मुंबई में काम करती हैं, राइट। लेकिन मेरी इंटर्नशिप कहाँ थी मेरी इंटर्नशिप, किसी को याद है अभी तक? गिव मी यस और नो, जिसको मेरी इंटर्नशिप याद है कहाँ पे थी EY में। किसी को याद नहीं है? मेरी EY की इंटर्नशिप नोएडा में थी और गुड़गांव में थी, लेकिन ये HR मुंबई की है। सो इससे मैं एक मिथ यहाँ पे बस खाली क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर आप किसी भी HR को कोल्ड ईमेल कर रहे हो इंडिया में, तो आपको अपनी डिजायर डोमेन पे, डिजायर पे इंटर्नशिप मिल सकती है। दैट्स नॉट अ बिग डील, एंड जरूरी नहीं आपको दिल्ली के HR को ही कोल्ड ईमेल करना है। इज इट क्लियर? ये गिव मी यस और नो, गिव मी अ थम्स अप। ओके, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, थोड़ा बहुत सेशन में मजा आ रहा है, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा। Cool. Now the fourth thing is reach out. Reach out is one of the finest way to ask for a referral in order to get an internship or a job, right? Now, अब reach out करने में कितने कितने, एक चीज, 2 चीजें तो बिल्कुल मत बोलना। जैसे ये 2 चीजें सिंपल आप इस तरीके से समझो कि ये 2 चीजें वो हैं जो आप पहली बार किसी से मिलते हो ना तो बिल्कुल नहीं करनी होती। जो हमारे दोस्त नहीं कहते कि जब तू उससे मिलने जा रहा है, मिलने जा रही है ना, तो ये चीजें तो बिल्कुल मत करिए जो तू हमारे सामने करती है, राइट। हम लोग एडवाइस देते हैं, सबको देते हैं, और हमें पता होता है कि वो सामने वाला इंसान कहता है कि ये चीज तो पूछेगा ही पूछेगा वो, राइट। सो सेम गोज विद द HR एंड सेम गोज विद द रिक्रूटर, हायरिंग मैनेजर और एवरीवन। ये मत बोलना कभी हाय हाउ आर यू, कभी भी मत लिखना, कभी भी। क्योंकि हाय हाउ आर यू उनके पास लाखों आ रखे होते हैं। ट्रस्ट में, मेरे को भी आए थे जब मैं EY में था। मेरे HRs जो मेरे दोस्त हैं, मेरे डायरेक्टर जो मेरे जानने वाले हैं, सबको हाय हाउ आर यू बहुत आते हैं, ठीक है। अब मेरे से अब कोई ये मत बोलना कि ये पूछ लें कि हाय व्हाट्सअप। मेरा मोटिव जो कहने का है वो है आपको उनके हालचाल नहीं पूछने। यू नीड टू फाइंड आउट कि व्हाट्स कॉमन बिटवीन यू एंड दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल, राइट। फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू रीच आउट टू मी, तो आप मेरे कॉमन जो ना मेरी म्यूचुअल चीज़ों के ऊपर बात करो। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं, आप मेरे को रीच आउट कर रहे हो, हे आदित्य आई सॉ योर पॉडकास्ट, राइट, I noticed that you talked about, personal branding. I just wanted to know one thing about personal branding. So this is a kind of a basic message जो मैंने लिखा, और इस पर्टिकुलर मैसेज ने उस पर्टिकुलर मैसेज को 99% से लेके सीधा 1% में ले आया। कितने लोग यहाँ पे जब रिक्वेस्ट सेंड करते हो वो यहाँ पे पर्सनल नोट ऐड करते हो लिंक्डइन पे, ठीक है। जब आप पर्सनल नोट ऐड करते हो ना लिंक्डइन पे, आप ऑलरेडी 90% लोगों से अलग हो गए हो। इट्स दैट सिंपल कि आपको बस एक पर्सनल नोट ऐड करना है और आप यू आर ऑलरेडी लाइक आपने डिफ्रेंशिएट कर लिया अपने आप को उस पर्टिकुलर चीज से, राइट। सो व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू फाइंड अ म्यूचुअल थिंग बिटवीन यू एंड दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल जिसको आप कोल्ड ईमेल कर रहे हो, जिसको आप कोल्ड DM कर रहे हो, सॉरी। You need to write something about it. You need to ask a question, right? And you need to just send it to that particular individual through add note. That's it. You are already in top 1%. अब now the main thing is that अगर वो आपका रिवर्ट करता है, जो 90% चांस है कर देगा या कर देगी, आपको डायरेक्टली नहीं पूछना कि वी आर लुकिंग फॉर अ रेफरल। देयर आर ओनली 1.0.1% पीपल जो अब बहुत कूल होते हैं, अच्छा रेफरल चाहिए मैं दे देता हूँ।
लेकिन बाकी 99% जो पीपल होते हैं दे आर जस्ट लाइक कि नहीं भाई क्या बात कर रहे हैं, राइट? तो वो चीज़ मत करना, ट्राई टू बिल्ड अप अ कॉन्वर्सेशन, राइट? बिल्डअप करने में आई थिंक यू ऑलरेडी नो हाउ टू बिल्डअप, राइट? तुमने यहाँ पे अपनी लाइफ में कभी ना कभी बिल्डअप कॉन्वर्सेशन करी है, भले वो एचआर से नहीं करी, किसी और से करी है, जिसकी वजह से आपको गाने के लिरिक्स समझ में आने लग जाते हैं. एनीवेज दैट्स अ लिटिल पर्सन. ओके, राइट? सो you know how to. Okay, how to give can you give some example? Okay, अगर आप जैसे कि अगर आप कोई मेरे को रीच आउट, मैंने किसी ने फॉर एग्जांपल आदित्य सिंह उधर है, मैं आदित्य सिंह नहीं हूँ, कोई आदित्य सिंह उधर बैठा है, मैं उसको रीच आउट कर रहा हूँ, तो मैं सिंपली बोलूंगा कि हे आदित्य, आई सॉ योर पॉडकास्ट ऑन यूट्यूब and I noticed that you interned with EY, right? I'm also in my first year, but I don't know कि मेरे पास आइडिया नहीं है. I just wanted to know about this particular single thing, like how to send a cold email. Can you please tell me that? And I, just simply add this. Always show gratitude first. Gratitude show करना, that's the key. Gratitude is the key to connections, bonding, or networking, or anything, right? ग्रैटिट्यूड इज द की, राइट? तो एक ग्रैटिट्यूड शो करना, अपने उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को अप्रिशिएट कर दिया, देन उसके बाद आप बोलते हो कि मेरा ये एक छोटा सा डाउट है, कैन यू प्लीज क्लियर दिस थिंग? वो बोले, मैं बोलूंगा कि डेफिनेटली मैं कर सकता हूँ, राइट? उसके बाद मैं जब आपको रिवर्ट करूंगा, आपको क्या करना है, आपको उस कॉन्वर्सेशन को लीड करना है, राइट? अब उस लीड को आप कैसे कर सकते हो? जब वो एक पर्टिकुलर रिप्लाई बोल दे, तो फिर बोलो कि ओ, फिर आप पूछना कुछ ऐसा चीजें पूछना जो आउट ऑफ द ब्लू है. फॉर एग्जाम्पल कि आपने कितने कोल्ड ईमेल भेजे थे, ये चीज कोई नहीं पूछता. हम हमेशा किसी, हमारे को कोल्ड ईमेल टेम्पलेट चाहिए होता, लेकिन कोई भी ये नहीं पूछता कि कितने कोल्ड ईमेल भेजे थे. देयर इज अ वेरी फेमस आर्टिस्ट की एक लाइन है कि कामयाबी से पहले क्यों काबिल होगी हार देखो. बिकॉज नो वन इज गोइंग टू टॉक अबाउट योर प्रोसेस, बिकॉज हर किसी को दिया, या जब आपने IIM कैट दिया, अगर आपने कितनी मेहनत करी हो, अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो, तो किसी को नहीं फर्क पड़ रहा है कि भाई तुमने क्या करा है, लेकिन आपने क्या क्या करा था भाई, तूने बहुत मेहनत करी थी, चल नहीं हुआ नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं, पर तेरी मेहनत का मुझे वो तो बता, तूने अपना शेड्यूल क्या रखा था, राइट? यू फील कि यार भाई ये चीज अलग पूछी इस इंसान ने, राइट? यू फील कि यार दिस इज समथिंग, दिस इज माई होम. तो यू नीड टू think about that thing, and you need to lead the conversation. This is how you can build a particular relation with a bond with any individual out there. Clear? Yes or no? Okay, cool. Now ये 4 पॉइंट हमारे क्लियर हो चुके होंगे. Now the fourth point is inbound. अब हाउ इनबॉन्ड इज अ वेरी वेरी यू कैन से रेयर चीज. मतलब इनबॉन्ड फ्रेशर्स को बहुत कम आते हैं, मेरे को भी 3 आए थे, बस उससे ज्यादा मेरे को भी नहीं आए. इनबॉन्ड के लिए अपना लिंक्डइन का प्रोफाइल, आदित्य विल यू सेंड द डॉक? हाँ हाँ डेफिनेटली भाई, मैं कर दूंगा, ये बहन जो भी है, ठीक है. तो हाउ टू क्रिएट सच प्रोफाइल जो इनबॉन्ड को अट्रैक्ट करे? तो देखो भाई, अगर आपको जॉब या इंटर्नशिप चाहिए, तो इनबॉन्ड की प्रोफाइल आपको ऐसी करनी पड़ेगी. आपको अपना लिंक्डइन ऐसा करना पड़ेगा कि this is the guy, yaar, I want this particular individual in my company, no matter what, I want this particular individual, right? अब उसके लिए में क्या करना पड़ता है? एक मैंने आपको बताया, एक अच्छा बैनर, एक अच्छी प्रोफाइल, एक अच्छी हेडलाइन, जो आपको हेडलाइन आपको हेल्प करेगी रिक्रूटर के सर्च में लाने के लिए. और जब आप रिक्रूटर के सर्च में आओगे, रिक्रूटर आपकी प्रोफाइल खोलेगा, यू नीड टू राइट अ गुड अबाउट सेक्शन. गुड अबाउट सेक्शन में यू नीड टू शोकेस your personal and professional approach towards your particular domain, or towards your particular thing that you are willing to do, right? Now the third thing is your experience. You need to define your experience in a very oriented manner, जहाँ पे आपने result oriented experience बताया हो, because quantification is the key to anything, right? To anything in this world, quantification is a very very important key. आफ्टर दैट यू, किस किस लोगों ने यहाँ पे सर्टिफिकेट करें, जिसकी मैं जैसे ब्रूटली ऑनेस्ट, येस और नो? किसी ग्रुप पर आएगा तो, अरे यार मैं अभी दे दूंगा, मैं यहाँ पे जो कोऑर्डिनेटर्स हैं मैं उनको शेयर करवा दूंगा. बाकी मैं तुम्हें एक और चीज़ दे दूंगा जहाँ पे तुम खुद ले सकते हो, ठीक है? उसके टेंशन मतलब. मुझे ये बताओ कितने लोगों ने यहाँ पे सर्टिफिकेट करें, येस और नो? जल्दी फटाफट, वी हैव ओनली कपल ऑफ मिनट्स लेफ्ट. ओके ठीक है, तो अपने सर्टिफिकेट ऐड करना, बिकॉज सर्टिफिकेट
जो सर्टिफिकेशन होती है वो आपकी शोकेस करती है आपकी डेडिकेशन प्लस कि आपने वो स्किल सेट बिल्ड करा है, राइट? तो सर्टिफिकेशन इज द की। और जैसे भी आप कंपनी में इंटर्नशिप करते हो उसमें आप रिकमेंडेशन लेने की ट्राई करो, दैट्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन रीचिंग आउट, राइट? कूल। कूल कूल कूल। नाउ अगर मैं बोलूँ आपको कि मेरा कोल्ड ईमेल टेम्पलेट, मेरा एचआर डेटाबेस, मेरा रिज्यूमे टेम्पलेट, मेरा रिज्यूमे डेटाबेस, मेरा बेन का डॉक्यूमेंट, मेरा बीसीजी का डॉक्यूमेंट, अगर आपको सबको एक चीज एक जगह पे चाहिए, सबको चाहिए वो चीज, गिव मी यस और नो, राइट? सो मैं उसका एड्रेस बता दूँ, एड्रेस का है उसका, उसका एड्रेस ये रहा। दिस इज आदित्य, ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है। जब आप इस इंस्टाग्राम अकाउंट को खोलोगे, राइट, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पर्टिकुलर विंडो. Just give me a thing. Yeah, take a screenshot of this particular window. This is Aditya is my Instagram account, right? You will find everything what you're looking for, including मेरा कोल्ड ईमेल टेम्पलेट, मेरी लेटेस्ट जो रील है उस पर जिस पे 100 के व्यू गए हैं वो मेरा बिग फोर का कोल्ड ईमेल टेम्पलेट और मेरा बिग फोर का डेटाबेस है. व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू जस्ट फॉलो मी एंड यू नीड टू कमेंट एग्जैक्टली वन वर्ड लाइक इंटर्नशिप और रिज्यूमे, जो भी उस रील में मैंने बोला हो कमेंट करने को, राइट? एंड यू विल गेट द थिंग इन योर डीएम, राइट? साउंड कूल? कभी भी ले सकते हो. कूल, ग्रेट. किस किस ने मेरा स्क्रीनशॉट ले लिया था? जिसने नहीं लिया मैं उनको एक बार यहाँ लिख के देता हूँ. दिस इज माई इंस्टाग्राम अकाउंट. जस्ट गो देयर, रीच आउट टू मी. यू नो I upload quality opportunities on a daily basis there, internship, job, everything, resume template, everything. फॉलो ही कर लिया, थैंक यू सो मच. हाँ, फॉलो करके अनफॉलो मत मारना, पहले बता रहा हूँ. हाँ, वो मत करना, वो नहीं करना, ठीक है? नाउ सो दैट्स द ओवरऑल सेशन, दैट्स द ओवरऑल थिंग. आई होप थोड़े, मैं भी बोलता हूँ कि अगर आपको अपना पहला पोस्ट लिखना है लिंक्डइन पे, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग एंड स्टार्ट एडिंग वैल्यू. कि मैं, आप मेरी समरी को अपने पोस्ट में समराइज करके पॉइंटर्स में आप रिपीट प्लीज हैव जॉइंड. इशिता, मैं पूरा सेशन तो अब कैसे रिपीट करूं मैं? भैया आप फ्री हो 2 मिनट? when we get when we get confident that I am ready for internship, you need to ask for you need to ask yourself, yeah, there is no right time for do, right? सो नाउ, अब जिसको अपना पहला लिंक्डइन पोस्ट लिखना है, आपको कुछ नहीं करना, आपको बस ये स्क्रीन, इस पर्टिकुलर सेशन का स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? इस सेशन का स्क्रीनशॉट लेने के बाद इस पर्टिकुलर सेशन को समराइज कर दो बुलेट पॉइंट्स में और एक सीटीए लिख दो, ठीक है? और वो आपका पहला पोस्ट रेडी हो जाएगा, जिसके पास कोई आइडिया नहीं है, राइट? अभी हम डाउट्स लेते हैं, 2 मिनट रुक जाओ, अभी हम 2 मिनट में डाउट्स लेंगे, सबके डाउट्स लेंगे, ठीक है? तो दिस इज द पहला पोस्ट, यू कैन दिस इज द फर्स्ट पोस्ट आइडिया. There are a lot of things, other things, I can't cover each and everything in details. And follow me on my social media because I'm coming to Microsoft Gurgaon on 18th of January. I think there are a couple of free passes. Follow me on my social media. If you are lucky, you will get a pass, right? Now that's all from my side. Now we are open to take any queries जिसको जो भी पूछना है. भैया एक बार रिव्यू कर देंगे जो मैंने भेजे, एक बार यार देख, अभी तो देख यार, अभी मैं तेरे को रिव्यू के लिए मैंने बीच में बोला था, मैंने सबके लिए पूछा था कि रिव्यू के लिए किसी ने माइक नहीं खोला था. नहीं भैया, मैं तब अभी ना एआई डे पे लेट आया था लिंक सेशन का. कोई नहीं, जस्ट ड्रॉप मी अ टेक्स्ट ऑन माय लिंक्डइन, मैं वहां पे रिव्यू कर दूंगा. अभी तो यहाँ तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा अभी भी, डेफिनेटली. ओके, सो मैं एक चीज बोलता हूँ यहाँ पे, मैं लास्ट में जो बोलना चाहूंगा वो ये है कि मैं क्या हूँ, मैं एक बार दिखा देता हूँ कि मैं क्या क्या था. लिंक्डइन शेयर कर दो ये. अरे हाँ यार, ये अच्छी बात बोली, इन्हें फॉलोअर बढ़वाऊंगा अपने यहाँ पे. गुड, यू आर अ गुड क्वेश्चन. कोई अगर ये सोच रहा हो ना कि गाने की आवाज कहाँ से आ रही है, तो मैंने यहाँ से प्ले कर रखे हैं. ओ इसका वो सॉरी आ रहा है, इसका बिजनेस स्कूल हो गया. अच्छा, मुझे लगा इसका सिलेक्शन हो गया, मैंने इसके अंदर ऑलरेडी एमबीए कर रखी है. लॉल,
सॉरी यार, मेरा ऐसे रैंडम रिएक्शन था, मेरी दोस्त है असल में वो। दिस इज माय लिंक्डइन, राइट राइट। थोड़ा अब इस माहौल को मैं लास्ट टाइम बस एक सीरियस कर देता हूँ। देखो, ये मैं हूँ, ये दिखाता हूँ, ठीक है। ये किसके, यहाँ पे इस पर्टिकुलर फ्रेम में आपको कई सारे जाने पहचाने चेहरे दिख जाएंगे, जैसे कि राज शिमानी, रिया प्रीति, पलक, यू नो द फाउंडर ऑफ टाइटन ग्रुप, कहाँ गए सर, कहाँ गए हमारे टाइटन ग्रुप वाले, ये रहा रोहित बंसल, राइट। एंड या, और यहीं पे आपको दिख जाऊंगा मैं इस पर्टिकुलर फ्रेम में, आदित्य सिंह, फाउंडर रोड टू ग्रो, ठीक है। और मैं 5 बार न्यूयॉर्क टाइम्स पर फीचर हो चुका हूँ, करंटली इन द टॉप 20 नोटेबल पर्सनालिटीज ऑफ इंडिया। अब सबको एक शॉकिंग की, सबको एक छोटा सा शॉक दूं मैं, जिस गेम में यस और नो, वो छोटा सा मैं शॉक देता हूँ फिर, ठीक है। योर स्क्रीन इज नॉट विजिबल, अब तो मैंने बंद कर दी ना पर, ओके। किस किस ने महाराजा सूरजमल का नाम सुना है जो आपके कॉलेज के बगल में है? या तो मैं उसी कॉलेज से पास आउट हूँ, ठीक है। अगर आपको पड़ोसी ये सब चीज़ें कर सकते हैं ना, तो तुम भी कर सकते हो। दैट्स वन थिंग दैट आई वांट टू से। कोई भी बड़ी फर्म, कोई भी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपसे कभी भी बाहर नहीं है। यू जस्ट नीड टू स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन एंड यू नीड टू स्टार्ट वर्किंग हार्ड ऑन अ डेली बेसिस, राइट। यू नीड टू मेरे एग्जाम थे वहाँ, सेंटर पड़ा था दिसंबर में। लिख लो गाइस, ये इस साल की यूपीएससी में आ भी सकती है ये चीज़, वैसे मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। सो दिस इज व्हाट आई वांट टू से कि मुझे पता है तुम में से कई सारे लोग आउटसाइड दिल्ली होगी, कई सारे इनसाइड दिल्ली होगी, कई सारे लोगों के पेरेंट्स के बहुत बड़े सपने होंगे कि यार हमारा बेटा या हमारी बेटी कुछ बड़ा करेगी, हमारा नाम रोशन करेगी, राइट। आई जस्ट ओनली वांट टू से वन थिंग कि दिस इज योर टाइम, यू नो। पार्टी वार्टी करनी है कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्टार्ट डूइंग समथिंग विच इवेंचुअली आपके पेरेंट्स को प्राउड फील करे, राइट। व्हेन आई गॉट फीचर्ड ऑन न्यूयॉर्क टाइम्स का, मेरे पूरे फैमिली में ये हुआ था कि यार ये चीज़ क्या हुई, जो आज ये कभी हुई नहीं। बिकॉज you know, I'm thankful thankful to each and everything that I have in my life right now, because you need, ये देखो, अगर आप अपने पेरेंट्स का पेरेंट्स को प्राउड फील करा सकते हो, दैट्स द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू इन दिस वर्ल्ड। एंड सपोज अगर आपकी नीति आयोग में इंटर्नशिप लग जाती है, आपके पेरेंट्स बोल सकते हैं कि हमारी बेटी या हमारा बेटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ इंटर्न कर रहा है। सोच रहे हो कितना प्राउड का मोमेंट है, क्योंकि सरकारी नौकरी तो वैसे ही पता है सबको कितनी तगड़ी चीज है ना। गिव मी यस और नो, राइट। सो जस्ट कीप वर्किंग हार्ड ऑन अ डेली बेसिस। कभी मैं सोचो कि कोई बड़े सपने देखो यार, कभी भी ये मैं सोचो यार कि छोटे सपने क्या होते हैं, कि कभी छोटे सपने मत देखना, हमेशा बड़े सपने देखना। और कभी भी मैं सोचना कि मैं इस कॉलेज से बिलोंग करता हूँ या करती हूँ, किसी भी कॉलेज से, कि तो मैं ये इस फॉर्म में नहीं जा सकती या उस फॉर्म में नहीं जा सकता। जब मैं एमएसआई में आया था, मुझे भी लगा था कि भाई मैं ईवाई में नहीं जा सकता, फिर मेरे को एक दिन लगा कि यार क्यों नहीं जा सकता, ऐसे कैसे, क्या सीन है। इट इज वॉट इट इज, राइट। सो वी आर डन फॉर टुडे। अब जिसको भी जो भी डाउट है वो पूछ सकता है वन बाय वन। हेलो हेलो हेलो, किसी को कोई डाउट नहीं है? तो सब ट्यूबलाइट है यहाँ पे। भैया डाउट होगा ना तो आपको डीएम कर दूंगा बस लिंक्डइन पर। अभी तो समझ में आ गया है, बिल्कुल। लिंक्डइन या इंस्टाग्राम पे आप रिप्लाई कर दोगे ना? हाँ हाँ भाई, बिल्कुल डेफिनेटली। अरे यार, किसी को जो भी पोस्ट लिखेगा ना, मेरे को टैग कर देना, मैं लाइक और कमेंट दोनों कर दूंगा, ठीक है। ठीक है भैया, ठीक है। थोड़ा Sir, और थैंक सेशन यू। में, can you give some last minute tips for a person with less professional experience? सॉरी, Some last minute tips to give with a person with less professional experience. you know, start doing the stuff, with, start your journey with a startup, and then after that move, it's a kind of a step by step guide. You need to do it. Like, for example, startup, then mid form, like like startup, small level firm, mid level firm, and then big firms, right? Because I started my journey as a social media manager with a startup, and now after that I went to Reliance, then I went to Niti Aayog, then I went to EY, then I got offers from Gartner, Bain, BCG, right? So always start small, right? And this is the, like, step by step is the process. This is the process. You need to go step by step, and after that, you can
build your empire, build your profile, build everything, right? So this is something जिसके बाद experience नहीं, just start small, right? That's thing. Okay, thank you, sir. किसी को कोई डाउट है फिर बाद में पूछना. भैया हाँ भैया. भैया आवाज आ रही है? भैया ये बात बताओ आप, ठीक है, आपके एंड से क्या सजेशन होना चाहिए टेक्निकल एस्पेक्ट्स में, मतलब किन किन चीजों पे फोकस करें हम तो ज्यादा बेटर हो हमारे लिए? यार आई थिंक वो जो है ना अभी बिल्कुल ऑफ टॉपिक हो गया, तो मेरे को डीएम कर दियो, वहां पे बता दूंगा तेरे को. ठीक है. Okay, guys, I think that's it. To all the officials, you can take over from here. हेलो भैया. हाँ भाई, तू मेरे को डीएम कर दिया, वहां पे बता हेलो. दूंगा मैं. Okay, so I think we are yeah, done. all the officials, please take it over. Thank you so much, guys. Thank you so much. I hope मैंने जो भी मेरे को थोड़ी बहुत नॉलेज है मैंने आपको शेयर करी हो और आपको अच्छा लगा हो. जो भी भूल चुकी हो उसके लिए सॉरी की लाइन है. Thank you, Aditya, for your insightful interactions with our participants' questions. On behalf of Technophiles Bharati College, a big heartfelt thank you to Aditya Singh for this amazing section. Your tips on LinkedIn optimization and resume building have been helpful and inspiring. A huge shout out to everyone who's joined us today. You all made this event a big success. Keep an eye out for more exciting events from Technophiles and let's keep the energy alive. Thank you and have an awesome day ahead. The webinar is officially wrapped up. See you next time. ओके गाइस, सी यू. और मुझे फॉलो कर लेना, मैं माइक्रोसॉफ्ट गुड़गांव के पासेस गिव अवे करूंगा थोड़े दिनों में. बाय बाय, टेक केयर.